Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Umar Rashid, lecturer in zoology from University of Education Faisalabad campus. In today's lecture, we will discuss about the respiratory system of mammals, in which we will discuss in detail about the organs of respiratory system, air passageways, lungs and mechanisms of inspiration and expiration in mammals, for example in case of human beings. As we all know that all life respires or breathes. Respiration in mammals is similar to respiration in other air-breathing animals. Respiration extracts oxygen from the air, which is then used by cells. Respiration also carries waste carbon dioxide away from the cells. Although respiration depends on other systems like the circulatory system to take oxygen and carbon dioxide to and from cells, the respiratory system has the primary responsibility of bringing oxygen into a mammal's body and sending carbon dioxide into the atmosphere. A respiratory system is made up of muscles and airways that work to bring fresh air into lungs, where oxygen is exchanged in blood for carbon dioxide. The airways are often lined with hairs or other structures that help to clean the air of dust and microbes before it enters the lungs. So we can say that high metabolic rate requires adaptations for efficient gas exchange, as in case of mammals, and most mammals have separate nasal and oral cavities and longer snouts for this purpose, which provide an increased surface area for warming and moistening inspired air. Different mammals breathe differently. Some breathe through nose, others breathe through mouth. Some mammals are able to breathe through either the nose or the mouth. As the air passes through the nose or down the trachea or airway, small hair and microscopic hair-like structures filter the air by attracting dust and microbes that could cause damage or infection in the lungs. यानी हम कह सकते हैं कि बहुत सारे मैमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है कि नेज़ल या ओरल कैविटीज़ या माउथ कैविटी जो होती है वो सेपरेट होती है, एंड उनका जो अगर हम स्नाउट की बात करें तो वो काफ़ी लॉन्गर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है और फिर आसानी से क्या होता है कि वार्मिंग भी हो जाती है एयर की भी, और वो मॉइस्ट भी हो जाती है एयर जो जिसको इंस्पायर किया जा रहा होता है. यानी यहाँ पे अगर आप ये नीचे देखें इमेज में, या जो आपको ये डायग्राम दिखाई गई है, इसमें आप ये क्रेनियल कैविटी देख सकते हैं और ये प्राइमरी पैलेट है, ये ओरल कैविटी है. दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें बाइफर्केशन हुई हुई कि नेज़ल कैविटी अलहदा है, फिर यहाँ पे सेकेंडरी पैलेट है और ये नीचे ओरल कैविटी आप देख रहे हैं. यानी यहाँ पे देखें आप तो नेज़ल कैविटी सेपरेट है और ओरल कैविटी जो है वो आप सेपरेट देख रहे हैं. तो प्राइमरी पैलेट जो होता है, आप यहाँ पे जो ये देख रहे हैं प्राइमरी पैलेट, तो ये मेडियल फ्रंटो नेज़ल जो बोन होती हैं या प्रोसेसेस होते हैं उससे ये मिलके बनता है, एंड इट इज़ अ ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर फ्रॉम विच द अपर लिप एंड द प्री मैक्सिलरी पैलेट फॉर्म. ठीक है ना, तो जिससे अपर लिप भी बनता है और प्री मैक्सिलरी प्रोसेसेस भी बन रहे होते हैं. तो वो कौन सा एरिया है? प्राइमरी पैलेट का एरिया है. इसके अलावा अगर हम सेकेंडरी पैलेट की बात करें तो रूफ जो होती है माउथ की वो उसको बनाता है. सो वी कैन से दैट इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द माउथ एंड इट इज़ डिवेलप्ड फ्रॉम द मैक्सिलरी प्रोसेसेस. ठीक है, तो ये मैक्सिलरी प्रोसेसेस से जो है ये सेकेंडरी पैलेट बनता है जिससे माउथ की रूफ बनती है. क्योंकि यहाँ पे ये देखें ओरल कैविटी है, इसके ऊपर जो माउथ की रूफ है तो वो सेकेंडरी पैलेट जो है वो डेवलप कर रहा है. इट मीन्स कि अब इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे ये नेज़ल कैविटी है. तो ये आप देख सकते हैं कि मोस्टली मैमल्स के अंदर क्या होता है, सेपरेट नेज़ल हैं पैसेजवेज और ओरल कैविटी के पैसेजवेज सेपरेट होते हैं. ये सब के केस में नहीं है, मोस्टली इस तरह से यानी होता है. और मैमल्स जो होते हैं दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट्स. ठीक है ना, तो इसी वजह से इनके अंदर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज का मैकेनिज्म पाया जाता है. So here in this slide you may see the organs of respiratory system of human beings. The respiratory system consists of all the organs involved in breathing. These include the nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi and lungs. The respiratory system does two very important things. First of all, it brings oxygen into our bodies, which we need for our cells to live and function properly. And it helps us get rid of carbon dioxide, which is a waste product of cellular function.
The nose, pharynx, larynx, trachea and bronchi all work like a system of pipes through which the air is funneled down into our lungs. In very small air sacs called alveoli, oxygen is brought into the blood stream and carbon dioxide is pushed from the blood out into the air. When something goes wrong with part of the respiratory system, such as an infection like pneumonia, it makes it harder for us to get the oxygen we need and to get rid of the waste product like carbon dioxide. So यहाँ पे अगर आप इसमें देखें तो आप बच्चों देख सकते हैं कि नेज़ल कैविटी है, ये फेरेंक्स है, लेरेंक्स है या वॉइस बॉक्स है, फिर ट्रेकिया, उसके बाद यहाँ पे आप ये प्राइमरी ब्रोंकस देख सकते हैं, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस है ये वाला, और उसके बाद ये टर्शरी ब्रोंकस है जो उसकी ही आगे फर्दर ब्रांचेस हैं, और फिर फर्दर वो डिवाइड हो गया इनटू ब्रोंकियोल. ठीक है, तो ब्रोंकियोल जो है यहाँ पे आप ये टर्मिनल ब्रोंकियोल देख सकते हैं, और उसको अगर हम एनलार्ज करके देखें तो उसमें पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी आप देख सकते हैं, फिर एल्वियोलर डक्ट आप यहाँ पे ये देख सकते हैं. तो ये एल्वियोलाई उसके अंदर आप देख रहे हैं जो कि एल्वियस से विच मीन्स हॉलो, तो अंदर से क्योंकि ये हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं छोटी छोटी, तो ये एल्वियोलाई कहलाती हैं जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है. यानी प्राइमरी साइड जो गैशियस एक्सचेंज की वो क्या है, एल्वियोलाई हैं. तो यहाँ पे आप ये ऑक्सीजन देख रहे हैं कि जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिमूव किया जा रहा है. तो ये कैपिलरीज का आप जाल देख सकते हैं जो उसके इर्द गिर्द होता है एल्वियोलाई के. तो इसी तरह से इस तरफ अगर आप देखें तो ये हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है, ये नेजल कैविटी आप देख रहे हैं, एंटीरियर नेयर्स हैं, फिर फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स में एयर जाती है और वहाँ से ईसोफेगस, ये एपिग्लॉटस है, और ये ट्रेकिया आ गया, ट्रेकिया से आगे फिर ब्रोंकस है, ब्रोंकस से आगे ब्रोंकियोल है, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल है, राइट और लेफ्ट लंग आप देख रहे हैं. और फिर उसके आगे ये आप ब्रोंकियोल को अगर हम फर्दर देखें तो उसके अंदर ये आपको एल्वियोलाई नज़र आ रहे हैं बेशुमार. ये ब्रोंकियोल के आगे जो हैं वो छोटी छोटी थैलियाँ सी बनी हुई हैं, एयर सैक्स हैं जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है. तो ये एल्वियोलाई के अंदर क्या है, पल्मोनरी आप वेन्यूल देख रहे हैं और उसके इर्द गिर्द पल्मोनरी आर्टरियोल है, यानी कैपिलरीज का रिच नेटवर्क होता है एल्वियोलाई के इर्द गिर्द, जहाँ पे क्या होता है गैशियस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इस तरह से तबादला हो जाता है. तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेजर पार्ट्स हैं जिनको हम आगे स्लाइड में भी फर्दर डिस्कस करेंगे इन डिटेल. Now if we talk about the respiratory passageways of mammals, the respiratory passageways of mammals are highly branched and they have a large surface area. तो इनका क्यों लार्ज सरफेस एरिया होता है, ताकि ज़्यादा गैशियस एक्सचेंज हो, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि यहाँ पे इसके अंदर आप ये देख सकते हैं जितना यहाँ पे इसमें आपको वेसल्स नज़र आ रही हैं और इसमें आप बहुत सारी ब्रांचेस आप देख रहे हैं, यानी ब्रोंकाई आप नज़र आ रहे हैं आपको. उसके आगे फिर क्या हो जाते हैं, फर्दर एल्वियोलाई आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ये एल्वियोलाई नज़र आ रहे हैं. तो इस तरह से क्या हो जाता है, एक ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाता है फॉर गैशियस एक्सचेंज, यानी जितना साइज स्मॉल होगा उतना ही सरफेस एरिया ज़्यादा होता चला जाएगा किसी भी चीज़ का. तो मेमेलियन लंग्स जो होते हैं दे रिजेंबल अ हाईली वैस्कुलराइज स्पॉन्ज. तो जैसे एक स्पॉन्ज होता है जिसमें बेशुमार वेसल्स हों तो वैसा ही नज़र आ रहे होते हैं, जैसे आपने फाइलम पोरीफेरा में स्पॉन्जेस को देखा. एंड रेदर देन दे आर नॉट लाइक द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ एम्फीबियंस एंड अ फ्यू रेप्टाइल्स. तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं हैं जिस तरह के एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स के केस में होता है, बल्कि यहाँ पे जो लंग्स हैं वो बिल्कुल एक वैस्कुलर स्पॉन्ज की तरह नज़र आ रहे होते हैं. एंड द लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग अ फ्यू फिश एंड सम स्नेल्स. सो लंग्स के बारे में अगर हम कहें तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेजर पार्ट होते हैं ह्यूमन बींग्स के केस में. एंड ह्यूमंस हैव टू लंग्स, अ राइट लंग एंड अ लेफ्ट लंग. They are situated within the thoracic cavity of the chest. The right lung is bigger than the left, which shares space in the chest with the heart. तो इसी वजह से उसका साइज जो है लार्जर होता है राइट लंग का. The lungs together weigh approximately 1.3 किलोग्राम and the right is heavier one. तो इस तरह से जो लंग्स होते हैं ये प्राइमरी रेस्पिरेटरी यानी ये जो है वो पाथवे यानी बनाते हैं, और यहाँ पे ही रेस्पिरेशन का अमल होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. Breathing is all about creating a difference in air pressure between the lungs and the environment. Air will then flow down its pressure gradient because gases like air always moves from area of high pressure to areas of lower pressure. Both frogs and mammals take advantage of this in different ways to move air into their lungs.
Frogs and mammals create this pressure gradient in different ways. For example, frogs actively create a higher pressure in their mouths, which is known as positive pressure mechanism, whereas mammals use their diaphragm to create a low pressure within their lungs, which is known as negative pressure mechanism. Whatever the mechanism, the end result is the same. A pressure gradient is created where lungs are at a lower pressure and air flows into the lungs. यानी मैमल्स के केस में अगर हम देखें तो मैमल्स किस तरह से एयर को अपने अंदर लेके जाते हैं, वो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, अपने डायाफ्राम को यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि लो प्रेशर क्रिएट होता है इनके लंग्स के अंदर. अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो मैमल्स के केस में क्या होता है, दे पोजेस अ मस्कुलर डायाफ्राम. जो यहाँ पे आपको ये एक डायाफ्राम की शीट नज़र आ रही है, तो मैमल्स के केस में ये मस्कुलर डायाफ्राम पाया जाता है, जो क्या कर देता है, सेपरेट कर रहा होता है थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटीज़ को. ये थोरेसिक रीजन है, ये एब्डोमिनल रीजन है, तो इसके दरमियान ये सेपरेशन का काम कर रहा होता है. तो इस डायाफ्राम की मदद से क्या करते हैं, मैमल्स ब्रीद इन करते हैं. जैसे यहाँ पे ब्रीद इन में देखें तो चेस्ट एक्सपैंड कर रही है, रिब्स जो हैं वो आगे की तरफ एक्सपैंड कर रहे हैं इसी वजह से, और डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव कर रहा है. यानी डायाफ्राम नीचे को जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से बाहर से हायर प्रेशर एयर का होगा और अंदर यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, तो एयर जो है वो अंदर की तरफ मूव कर जाएगी. जबकि दूसरी तरफ देखें आप तो डायाफ्राम जो है वो डूम शेप हो गया है. तो डायाफ्राम जब रिलैक्स करेगा तो ये क्या होगा, पुश जब ऊपर की तरफ होगा तो जहाँ यहाँ पे मौजूद जो एयर लंग्स के अंदर होगी वो क्या हो जाएंगे, डीफ्लेट कर जाएंगे, इन्फ्लेट नहीं करेंगे, तो एयर यहाँ से वापस जो है उनके अंदर से बाहर की तरफ रश आउट हो जाएगी या निकल जाएगी. उसकी रीज़न क्या है कि इस तरफ जो है वो एयर प्रेशर अब ज़्यादा हो गया और बाहर की तरफ क्या है, कम है. तो इस तरह से ये एयर को बाहर निकाल देंगे. यानी डायाफ्राम की वजह से क्या होता है, मैमल्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है उनके लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से वो रेस्पायर कर रहे होते हैं. जबकि फ्रॉग्स के केस में क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर मैकेनिज्म होता है, वो इसके ऑपोजिट होता है. लेकिन दोनों में मैकेनिज्म अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन का तकरीबन क्या है, सेम. सो वी कैन से दैट मैमेलियन लंग्स लाइक दोज ऑफ रेप्टाइल्स इन्फ्लेट यूजिंग अ नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म, एंड अनलाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, however mammals possess a muscular diaphragm that separates the thoracic and abdominal cavities. So we can define the diagram as a dome-shaped muscular and membranous structure that separates the thoracic or chest cavity and abdominal cavities in mammals, and it is the principal muscle of respiration. यानी ये respiration का एक principal muscle होता है, and the muscles of the diaphragm arise from the lower part of the sternum, which is known as breastbone, and the lower 6 ribs and the lumbar vertebrae of the spine, and are attached to a central membranous tendon. Contraction of the diaphragm increases the internal height of the thoracic cavity, thus lowering its internal pressure and causing inspiration of air. And the relaxation of the diaphragm and the natural elasticity of the lung tissue and the thoracic cage provides or produce expiration. यानी अब ये क्या करता है, ये इंस्पायरेशन में भी हेल्प कर रहा है और एक्सपायरेशन में भी हेल्प कर रहा है, जैसे आपको मैकेनिज्म बताया है. Now in this slide we are going to discuss about the lungs of mammals. The lungs of mammals are a pair of spongy, air-filled organs located on either side of the chest or the thorax. The trachea conducts inhaled air into the lungs through its tubular branches called bronchi. अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लंग्स आप देख रहे हैं ह्यूमन बींग्स के, तो यहाँ पे ये ट्रेकिया या विंड पाइप आप देख रहे हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, एयर्स इन लंग्स के अंदर एंटर होती है. तो अब यहाँ पे लंग्स के अंदर जो है ट्यूबुलर ब्रांचेस आप देख रहे हैं, दीज आर नोन एज ब्रोंकाई. तो यहाँ पे ब्रोंकाई आप 3 तरह के देख रहे हैं. ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, उसके आगे फिर फर्दर ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है, और उससे आगे फर्दर जो डिवीजन होती जा रही, ब्रांचेस बनती जा रही, वो क्या है, टर्शरी ब्रोंकाई है. और ब्रोंकाई जो होते हैं दे देन डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस विच आर नोन एज ब्रोंकियोल्स. तो ब्रोंकाई आगे फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होते चले जाते हैं. तो ये ब्रोंकियोल्स आप देख रहे हैं, और ब्रोंकियोल्स जो होती हैं दे आर फाइनली बिकमिंग माइक्रोस्कोपिक. तो ये फाइनली बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होती चली जाती हैं, and they eventually end in clusters of microscopic air-like sacs or air sacs which are known as alveoli. तो फिर अल्टीमेटली ये बहुत सारे क्लस्टर्स बना देती हैं माइक्रोस्कोपिक जो ब्रांचेस होती हैं ये वाली ब्रोंकियोल्स की. उससे आगे फर्दर जो है माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स के क्लस्टर्स बन जाते हैं. तो उन क्लस्टर्स को हम क्या कह देते हैं, एल्व्यूलाई कह देते हैं.
तो ये एल्व्यूलाई अगर आप देखें यहाँ पे, जैसे ये आगे एक ब्रोंकियोल को दिखाया गया है यहाँ से, तो उसको एनलार्ज करके या जूम करके हम देखें तो आप उसमें बहुत सारी जो है वो एल्व्यूलाई देख रहे हैं ये वाली, और ये एल्व्यूलर डक्ट भी आपको यहाँ पे अपीयर हो रही है। तो इस तरह से एल्व्यूलाई बन जाते हैं। इन द एल्व्यूलाई ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ट्रेवल्स फ्रॉम द ब्लड टू द एल्व्यूलाई वेयर इट कैन बी एक्सहेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है उसको जो है हासिल कर लिया जाता है, जो कि एयर से हासिल की गई थी, उसको ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड में एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे बनी थी उसको क्या किया जाता है, इन एल्व्यूलाई के अंदर जो है एक्सचेंज कर दिया जाता है, जिसको फिर एक्सहेल कर दिया जाता है या बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। बिटवीन द एल्व्यूलाई इज अ थिन लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड द इंटरस्टिशियम। तो एल्व्यूलाई के दरमियान क्या होता है, एक बहुत थिन लेयर पाई जाती है सेल्स की, जिसको इंटरस्टिशियम कहा जाता है, विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड सेल्स दैट हेल्प सपोर्ट द एल्व्यूलाई। तो उसमें कुछ ऐसे सेल्स और ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो एल्व्यूलाई को सपोर्ट कर रहे होते हैं। एंड द लंग्स आर कवर्ड बाय अ थिन टिश्यू लेयर कॉल्ड द प्ल्यूरा। तो ये लंग्स आप देख रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या होता है कि टिश्यूज की एक बहुत थिन लेयर पाई जाती है जिसको प्ल्यूरा कहा जाता है, जो इसकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। And a thin layer of fluid acts as a lubricant, allowing the lungs to slip smoothly as they expand and contract with each breath. तो इस तरह से लंग्स की हिफाजत होती है और लंग्स की जो है वो केयर की जाती है कि लंग्स के ऊपर लुब्रिकेटिंग मटेरियल जो होता है वो ऐड होता चला जाता है जब वो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करें, ताकि उनकी जो है वो फ्रिक्शन या रगड़ कम से कम हो सके। और प्ल्यूरा भी इसकी इर्द गिर्द लंग्स के पाई जाती है, यानी टिश्यू लाइन्स पाई जाती है, थिन टिश्यू लाइनिंग पाई जाती है। और अगर हम लंग्स के बारे में यहाँ पे बात करें तो दे आर इंटरनल सैक शेप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड लंग्स हैव थिन एपिथेलियम विच फैसिलिटेट्स गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लंग एयर एंड ब्लड एंड लंग्स आर हाईली वेस्कुलराइज्ड विच मीन्स दे आर रिच इन ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज। जैसे यहाँ पे आपको ब्लड कैपिलरीज एल्व्यूलाई के केस में आप देख सकते हैं कि एल्व्यूलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। Pulmonary ventilation is commonly referred to as breathing, and it is the process of air flowing into the lungs during inspiration and out of the lungs during expiration. Air flows because of pressure differences between the atmosphere and the gases inside the lungs, as we have discussed in the previous slides. So, when air moves by bulk flow into and out of the lungs, this is termed as ventilation. Carbon dioxide diffuses across the respiratory surface of lung tissue from pulmonary capillaries, and oxygen diffuses from alveoli to pulmonary capillaries. Diffusion is between blood and interstitial fluid, then between body cells and interstitial fluid. Hemoglobin is the respiratory pigment which is found in mammals. तो हीमोग्लोबिन की वजह से ये रेस्पिरेशन का अमल हो रहा होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करती है, वो ऑक्सीजन को कैरी करती है टुवर्ड्स डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, और वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके आती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वेंटिलेशन मैमल्स में कि हमने जैसे पहले देखा था कि पल्मोनरी इसमें जो है वो आर्टरी और पल्मोनरी वेन आप जैसे देख रहे हैं, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आप यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि ब्रोंकाई जो होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी हो सकते हैं, फिर आगे वो ब्रोंकियोल में डिवाइड कर जाते हैं, और ब्रोंकियोल से आगे क्या होता है, एल्व्यूलाई पाई जाती हैं जो कि 1 सेल थिक होती हैं, जिनकी मोटाई जस्ट 1 सेल जितनी होती है। इसी वजह से यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज बड़ा ईजी हो जाता है। और ये एल्व्यूलाई जो होती हैं इनके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती है, दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, जिसकी वजह से क्या होता है, चूँकि ये बहुत स्मॉल साइज़ की होती हैं तो सरफेस एरिया इनका ज़्यादा होता है और गैसियस एक्सचेंज भी यहाँ पे बहुत ईजी होता है। ऑक्सीजन जो होती है उसको ब्लड में ले लिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनी होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है वाया लंग्स। तो इस तरह से लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है इन एल्व्यूलाई के अंदर। और हीमोग्लोबिन जो होती है बहुत वाइटल रोल प्ले करती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो होती है ये तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर तकरीबन उनके रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है, यानी जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उसके अंदर ये आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटेलोप्रोटीन है। और ये तमाम टिश्यूज़ के अंदर भी पाई जाती है कुछ इनवर्टिब्रेट्स के, जैसे बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स के एग्जांपल्स हैं इसमें। हीमोग्लोबिन इन ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये लंग्स से क्या करती है, बाकी बॉडी तक ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होती है वो हीमोग्लोबिन की मदद से ही हो रही होती है।
and a healthy individual has almost 12 to 20 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि एयर का पैसेज वे हमने देखा था इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो यहाँ पे आपको एयर का पैसेज वे दिखाया गया कि या ओरल या नेज़ल कैविटी के थ्रू जो है वो एयर एंटर हो सकती है माउथ के अंदर. ये ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी आप देख सकते हैं, ये ओरल कैविटी और ये नेज़ल कैविटी है. फिर यहाँ से जो है वो एयर मूव करती है इनटू फेरेंक्स, और फिर फेरेंक्स से आगे लेरेंक्स में जाएगी या वॉइस बॉक्स में से होती हुई फिर आगे ट्रेकिया में चले जाएगी, और ट्रेकिया से आगे क्या है, ब्रोंकाई है. और ब्रोंकाई का भी हमने फर्दर देखा था कि प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई है. फिर उससे आगे जो है यहाँ पे आप ब्रोंकियोल्स देख सकते हैं. ब्रोंकियोल्स के आगे फर्दर जो है वो आपको एल्व्यूलाई नज़र आ रहे हैं. तो ये अगर हम उसको जूम करके देखें तो यहाँ पे आप ब्रोंकियोल में ये ब्लड फ्लो हो रहा है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी आप देख रहे हैं वहाँ पे उसकी सप्लाई की जा रही है. और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के अंदर जो है यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है, और ये एल्वियोलर डक्ट आप देख रहे हैं. और यहाँ पे आपको उसका जूम करके दिखाया गया है कि किस तरह से जो है वो ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो रिचली सप्लाइड होती हैं टू एवरी एल्व्यूलाई. तो यहाँ पे इस तरह से गैशियस एक्सचेंज होता है, यानी एक पाथवे है जनरलाइज्ड जिसको आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फेरेंक्स से लेरेंक्स, लेरेंक्स से ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई और लास्ट पे ब्रोंकियोल से होता हुआ एल्व्यूलाई के अंदर गैशियस एक्सचेंज होता है एयर का. So now in this slide we are going to discuss about the alveoli in detail. Alveoli are an important part of the respiratory system whose function is to exchange oxygen and carbon dioxide molecules to and from the bloodstream. And these tiny balloon shaped air sacs sit at the very end of the respiratory tree and are arranged in clusters throughout the lungs. So we can say that alveoli are tiny balloon shaped structures and are the smallest passageway in the respiratory system. The alveoli are only one cell thick, यानी कि इनका जस्ट एक सेल जितनी मोटाई होती है जितना एक सेल की थिकनेस होती है. दैट्स वाई दे अलाउ द रिलेटिवली ईजी पैसेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एल्व्यूलाई एंड ब्लड वेसल कॉल्ड कैपिलरीज. तो इसी वजह से कैपिलरीज के दरमियान और इनके एल्व्यूलाई के दरमियान क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आसानी से एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि ये जस्ट वन सेल थिकनेस इनकी जो है वो थिकनेस होती है. एंड 1 cubic millimeter ऑफ लंग टिश्यू कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 170 एल्व्यूलाई. तो तकरीबन यानी कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर अगर हम लंग टिश्यू को देखें तो उसमें 170 एल्व्यूलाई हो सकते हैं. और एल्व्यूलाई जो होते हैं आपको पता है कि इनके अंदर जो है सरफेक्टेंट रिलीज होता है जिसकी वजह से जो होता है ये मॉइस्ट रहते हैं. सो एल्व्यूलाई आर लाइंड बाय अ फ्लूइड लेयर नोन एज सरफेक्टेंट विच मेंटेन्स द शेप एंड सरफेस टेंशन ऑफ द एयर सैक. By maintaining surface tension, there is more surface area through which oxygen and carbon dioxide molecules can pass. तो इस तरह से एल्व्यूलाई जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि ये एक फ्लूइड लेयर की लाइनिंग पाई जाती है, थिन फ्लूइड लेयर की, जिसको सरफेक्टेंट कहा जाता है, जो इसकी शेप को और सरफेस टेंशन को एयर सैक की मेंटेन कर रहे होते हैं. इस तरह से इसके अंदर अब यहाँ पे वही वाली ये बच्चों आपको स्लाइड दिखाई गई है जिसमें हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल देख सकते हैं, जिसमें पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन आप देख रहे हैं, ये ब्लड फ्लो हो रहा है. और यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंकियोल आप देख रहे हैं, जिसके आगे क्या है ये एल्व्यूलाई आप देख रहे हैं, छोटे छोटे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं आपको. एंड दीज ग्रेप लाइक पाउचेज आर नोन एज एल्व्यूलाई, जिनके जो कि स्मॉल ट्यूब्यूल्स के ज़रिए से जुड़ी होती है, जिनको एल्व्यूलर डक्ट कहा जाता है. तो एल्व्यूलर डक्ट के आगे ये एल्व्यूलाई हैं, ये एल्व्यूलर सैक आप देख रहे हैं छोटे छोटे. So we can say that alveoli are the functional units of the lungs. तो ये lungs के functional units है जहाँ पे actual gaseous exchange हो रहा होता है. So now in this slide we will discuss about the mechanism of inspiration. As we know that the processes of inspiration and expiration are vital for providing oxygen to tissues and removing carbon dioxide from the body. Inspiration occurs via active contraction of the muscles such as the diaphragm, whereas expiration tends to be passive unless it is forced. So यहाँ पे अगर हम देखें तो इंस्पायरेशन में क्या होगा कि जैसे आपको पहले बताया था कि नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म होता है. तो नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म में एयर जो है वो अंदर की तरफ क्यों मूव करेगी, क्योंकि डायाफ्राम जब नीचे की तरफ यहाँ से मूव करेगा तो उससे क्या होगा कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा लंग्स के अंदर, यानी बाहर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम होगा. तो इसीलिए एयर बाहर से अंदर की तरफ रश इन करेगी या अंदर की तरफ मूव करेगी.
तो डायाफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, सेकंड स्टेप में अगर आप देखें तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं दे पुल रिब्स अप एंड आउट। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं वो रिब्स को ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ धकेल देंगे, जिससे यहाँ पे जो है स्पेस क्रिएट हो जाएगी, यानी यहाँ पे जो है वो प्रेशर कम हो जाएगा, इसीलिए बाहर से फिर एयर अंदर की तरफ लंग्स की तरफ रश करेगी। यहाँ पे फिर देखें आप तो स्टर्नम जो होती है इट मूव्स अप एंड आउट। तो इसी तरह से जो स्टर्नम रिब्स है जो मिड में नज़र आ रही है ये वाली, तो ये भी बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ जो है मूव करेगी और डायाफ्राम मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट करता चला जा रहा है, यानी नीचे की तरफ मूव करता चला जा रहा है। पेक्टोरेलिस माइनर जो है मसल, ये जो आप देख रहे हैं इट एलिवेट्स रिब्स, तो रिब्स को उठाने के लिए ये मसल जो है वो वर्क करता है। इसी तरह से स्टर्नो क्लीडोमेस्टॉइड जो है इट एलिवेट्स स्टर्नम। ठीक है, तो ये मसल जो है ये स्टर्नम को एलिवेट करता है, ये बाहर की तरफ उठा रहा होता है। तो यहाँ पे भी आप इंस्पायरेशन में अगर देखें तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स जो होते हैं दे कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है और डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, आप डायाफ्राम को देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखें आप तो चेस्ट वॉल एंड लंग्स एक्सपैंड, तो चेस्ट वॉल और लंग्स जो हैं वो फैल जाएंगे और एक्सपेंशन ऑफ द रिब्स मूव्स स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो इससे क्या होगा, रिब्स जो होगी वो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ जो है वो मूव करेंगी जब रिब्स जो होती हैं उनकी एक्सपेंशन हो रही होगी या फैल रही होंगी। तो जब सांस हम अंदर ले रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि चेस्ट कैविटी जो होती है वो इंक्रीज करती है। Now in this slide we will discuss about the mechanism of expiration in case of mammals like human beings. Expiration is the phase of ventilation in which air is expelled from the lungs, यानी lungs में से जो air का बाहर की तरफ निकलना जो है expiration कहलाता है। It is initiated by relaxation of the inspiratory muscles, यानी ये बिल्कुल opposite इसमें steps हम देखेंगे, जो inspiration के हमने steps देखे थे उसके बिल्कुल opposite expiration के steps हैं। So we will discuss them one by one. In case of expiration, the diaphragm relaxes to return to its resting position, which reduces the superior or inferior dimension of the thoracic cavity. And in case of external intercostal muscles, the external intercostal muscles relax to depress the ribs and sternum, which reduces the anterior or posterior dimension of the thoracic cavity. So the relaxation of the inspiratory muscles results in a decrease in the volume of the thoracic cavity. The elastic recoil of the previously expanded lung tissue allows them to return to their original size. As per Boyle's law, a decrease in lung volume results in an increase in the pressure within the lungs. The pressure inside the lungs is now greater than in the external environment, meaning air moves out of the lungs down the pressure gradient. तो अब इसमें क्या होगा कि अंदर प्रेशर ज़्यादा बन जाएगा, बाहर कम। जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हैं साइड व्यू ऑफ द चेस्ट में कि डायाफ्राम जो होता है वो जब रिलैक्स करता है इट बल्जेस अपवर्ड्स। तो यहाँ पे आप डायाफ्राम देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ मूव कर गया है, तो इससे क्या होगा कि लंग्स का जो अंदर एयर है वहाँ पे उसके अंदर जो है वो बाहर की तरफ उसने रश आउट करना है, क्योंकि बाहर जो है वो एयर प्रेशर जो है वो कम हो गया है अब इस केस में, और अंदर एयर प्रेशर ज़्यादा हो गया है। द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेज, इसलिए चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा जिससे बाहर की तरफ एयर को फोर्स आउट किया जाएगा। एंड रिब्स मूव्स डाउन एंड इन, तो रिब्स नीचे की तरफ आएंगी और अंदर की तरफ मूव करती हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, अब ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी रिलैक्स कर जाएंगे और इस तरह से एयर जो है ये आप उसको एरो से दिखाया गया कि वो बाहर की तरफ रश आउट करेगी थ्रू विंड पाइप। और यानी कि इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो डायाफ्राम जो है वो बिल्कुल अंदर की तरफ मूव कर गया है। रिब केज की आपको पोजीशन दिखाई गई है, लंग्स आप देख रहे हैं और विंड पाइप